देखिए ऑब्वियसली आप जैसे अनिल भाई ने बोला, आप कोई भी टेस्ट मैच या वनडे मैच या T20 मैच खेलते हैं तो ऑब्वियसली पहले आपका इंटेंशन ये रहता है कि हमें जीतना है। अम, तो हमारा इंटेंशन हमेशा यही रहेगा कि हम जीत के लिए जाएंगे। ऐसे सिचुएशंस हुए हैं बीच में जहां हम हारे भी हैं, लेकिन हमें पता है कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेले, इसलिए हम ऐसी पोजीशन में आ पाए कि हम जीत भी सकते हैं या हार भी सकते हैं। तो हम हारे हैं अपनी गलतियों से, और हमें रियलाइज़ ये करना है कि हम उस पोजीशन में आए हैं 80% अच्छी क्रिकेट खेल के। तो हम फोकस करते हैं जो 20% हमने मिस्टेक्स करी हैं उसको इम्प्रूव करें, और बाकी 80% को ना चेंज करें। तो वो एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और अनिल भाई के आने से उसमें और बूस्ट मिलता है, क्योंकि इनका माइंडसेट भी वैसा ही था कि कोई भी सिचुएशन से हम मैच जीत सकते हैं। और ऐसा उन्होंने कितनी बार किया टीम के लिए कि जब लगता है कि नई विकेट्स मिल सकते हैं, वो आके विकेट ले लेते हैं, 4-5 विकेट एक स्पेल में। तो आई थिंक माइंडसेट एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जो जैसा आप सोचते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में। और ऑब्वियसली जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितनी एबिलिटी है किसी भी सिचुएशन से मैच जीतने की। आई थिंक अगर हार का थोड़ा हेजिटेशन रहता है तो आप कभी ट्राई नहीं कर पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कितनी एबिलिटी है। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि हम एक्सप्लोर करें कि हम कितने अच्छे हैं, क्योंकि आप जो चीज़ रिपीट करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे टेस्ट मैच कैसे जिताना है, या हमें एज अ टीम क्या करना है जीतने के लिए। तो वो वही होगा जब तक आप उस चीज़ को करेंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जब तक नहीं करेंगे तो उस चीज़ की समझ नहीं आ पाएगी। तो हम लोगों का इक्वली यही मोटिव है आगे बढ़ने का कि एज ए टीम हम इसी माइंडसेट से खेलेंगे कि हमें सीरीज़ जीतनी है। हमें सिर्फ एक और टेस्ट मैच नहीं जीत के सेटिस्फाई नहीं होना है कहीं पे भी, हमें पूरी सीरीज़ ख़त्म करनी है। उसके बाद ही हम एज ए टीम जो है उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। या इट वॉज लो स्कोरिंग, बट सी वन थिंग वी नीड टू रियलाइज इज दैट yes, we have to focus on the things we did wrong in the series as a batting group, and this is something we never are shy of, admitting that we have faults that we need to correct. We have some areas that we need to improve on, and all the batsmen are pretty much aware of that, because we understand that as a batting group we need to bat together, in partnerships, not just on the field but in our preparations as well. We need to understand each other better. And the more we understand each other better, the better we can handle situations, because you can play according to how your partner is playing as well. So I think that's where the patience bit matters a lot, because you know exactly what your partner is doing. So you will never go away from the plan that's actually given to you by the team in that particular situation, which I think sometimes we have in the past lost patience and played shots at important times, especially just before breaks or just after breaks, say drinks, lunch, tea, whatever it is. And those are important moments in the game. So we have identified that we need to get stronger there, because if you start off well in a session, then more often than not you'll be able to capitalize. But if you lose wickets early, then more often than not you're always playing catch-up cricket throughout the session. So these are little areas that we've identified, and something that certainly we want to improve as a squad, because even if you want to declare at a particular score, it should be in control of the batsman. It shouldn't be that you're trying to reach that score somehow or the other. So that's the conscious effort. I mean, 8 times out of 10, if we can be in control of how many runs we want to get and when we want to declare, and actually be in control of the whole situation, that's exactly what we want as a batting unit. And I think the bowlers did a really good job. Was really happy obviously with the way the spinners bowled. At home they always dominate, but the way the fast bowlers bowled in the last game, especially in the last session, to win that game and finish it off for us was a great sign. Showed great skills with the reverse swing aspect of bowling, and that as a captain made me feel very confident about the plans we can create going to West Indies, because the wickets are going to be similar and the conditions will support reverse swing as well. So a lot of positives that we can take out from the last series. देखिए हाई स्टैंडर्ड की अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं. हम लोगों के लिए हाई स्टैंडर्ड इज़ नॉट कि हमारा टारगेट ये है कि हमें नंबर 1 बनना है टेस्ट रैंकिंग्स में. आई डोंट थिंक कि कोई भी टीम रैंकिंग्स के लिए खेलती है. और एक जो मेन गोल होता है टीम का वो यही होता है कि अच्छा क्रिकेट खेलें, और वो एक चीज़ है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. रैंकिंग्स आप अगर नंबर 1 भी हैं और अगर आप मैचेस नहीं खेल रहे हैं तो कोई दूसरी टीम जीतेगी और आप नंबर 2 पे आ जाएंगे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम कैसी क्रिकेट खेलते हैं फील्ड पे, और ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं. आई मीन अगर आप एक सीरीज़ जीतते हैं और एंड में आपको एक इंसेंटिव मिलता है कि आप नंबर 1 हो जाएंगे, तो ठीक है, आपके पास एक और रीज़न है उस फीलिंग को सेलिब्रेट करने का. लेकिन मोटिव हमारा यही है कि हम कैसे 1 टेस्ट मैच एट अ टाइम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि
जैसे अनिल भाई ने बोला कि सीज़न लंबा है और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्लान कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेट है जो आप अब रेगुलरली खेलेंगे अगले काफ़ी महीनों तक। तो एक अपॉर्चुनिटी होती है टीम को साथ में बने रहने की और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते रहने की, क्योंकि अगर आप 2 मैच खेलेंगे उसके बाद 6 महीने बाद टेस्ट मैच खेलेंगे तो फिर आपका रिदम नहीं बन पाता इतना। तो अभी हमारे पास परफेक्ट सिचुएशन है और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को चैलेंज करना और अपने आप को असेस करना एज अ टेस्ट टीम। और मुझे लगता है कि ये कुछ महीने जो हैं वो डिफाइन करेंगे कि हम आगे आने वाले सालों में कैसी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे।